Namaskar to all of you. Myself Asit Kumar Patnaik. My channel name Asit Government Rule Guru. Again, I am coming back to my channel. Today, I will discuss part 3 of traveling allowance. Already, I have discussed the first two parts. Just you see my playlist. And if you have not subscribed my channel, please subscribe me so that you can get notification in posting time about my upcoming videos. So now I do not want to waste more time. Now I am going to discuss traveling allowance part 3. Use of staff car while on tour. Staff car can be taken on tour with approval of an officer of the rank of senior executive. The family of the employee can accompany the official in the staff car on payment of prescribed amount. Next, TA advance, it is very important one. Many times question is coming related to TA advance. An advance can be drawn to cover the expenditure up to a month on Delhi allowance, road or rail or air fares in normal cases. Second one, for 6 weeks on Delhi allowance, fares, contingent charges for hiring of conveyance for carrying records, tents, etc. in case of prolonged tours in the interiors. The advance is admissible in all cases where TA is admissible. A second advance cannot be drawn until an account of the first advance is given, except in case where a second journey has to be taken immediately after completion of the first tour, leaving no time for submission of the bill for the first tour. So it means after completion of the tour, immediately the first advance must be claimed within 15 days. If immediately the second tour started just after the first one and there is no time for employee to submit the claim, then again after completion of the second tour, including leave, okay, then just after that within 15 days, the employee must claim the traveling allowance within 15 days. Most important one, if you have taken advance, then after completion of journey within 15 days you must submit your claim. Clear? A second advance cannot be drawn until an account of the first advance is given. It means यदि आप फर्स्ट एडवांस को क्लियर नहीं किया है या सबमिट नहीं किया है तब आप सेकेंड एडवांस नहीं ले सकते हो. Clear? Except in cases where a second journey has to be undertaken immediately after completion of the first tour, leaving no time for submission of the bill for the first tour. The advance will be recovered by adjustment from the TA bill after completion of the journey. Last one, the green part you see, the advance should be adjusted within 15 days after completion of the tour or joining duty. If tour is followed by leave, it's very important one. Many times question is coming. If you have taken advance, then after completion of journey, within 15 days, you must submit the claim. Otherwise, your claim would be forfeited. If after tour, if immediately you take leave, then after tour combined with leave, then after joining, immediately within 15 days also, immediately you submit the claim. Then TA claim, for claiming TA, submission of the boarding passes as proof of having undertaken the journey is mandatory. Claiming of TA or DA on tour or transfer or training or journey on retirement should be made within 60 days from the date of completion of journey. तो यहाँ पर एक याद रखना है, यदि आप एडवांस लिया है तब जर्नी कंप्लीट होने के बाद विदिन 15 डेज आपको क्लेम करना है. यदि आप एडवांस नहीं लिया है तब आपको विदिन 60 डेज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जर्नी विदिन 60 डेज और 2 मंथ्स यू मस्ट सबमिट द क्लेम. तो ये दोनों को याद रखना है. एडवांस लिया है तो जर्नी के बाद विदिन 15 डेज में आपको
क्लेम करना है, टीए क्लेम करना है। यदि आप एडवांस नहीं लिया है तब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जर्नी विद इन 60 डेज और विद इन 2 months यू मस्ट सबमिट द क्लेम। इट इज इफेक्ट फ्रॉम 13th March 2018. Okay, for a claim of TA for journey performed by the officer and his family members, the dates should be reckoned separately for each journey and the claim shall be submitted separately within 60 days succeeding the date of completion of each journey. यदि एम्प्लॉई और उसका फैमिली दोनों का जर्नी डिफरेंट होता है, जैसे ट्रांसफ़र टाइम में कि आप आफ्टर रिटायरमेंट, तो इस टाइम में यदि एम्प्लॉई और फैमिली का जो जर्नी होता है वो अलग अलग होता है, उसके हिसाब से फॉर ईच केस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जर्नी विद इन 60 डेज सेपरेटली दे कैन क्लेम इट। क्लियर? क्लेम्स submitted beyond the specified time shall be deemed to have been relinquished. A controlling officer cannot delegate his duty of countersign of TA claims to his subordinate unless he has seen expressly permitted by the competent authority. जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है उसका जो डेलीगेशन फाइनेंशियल पावर है, तो उसमें जो काउंटर साइन होता है टीए क्लेम में, वो उसका सबऑर्डिनेट को नहीं दे सकता है जब तक उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से परमिशन नहीं मिला है। ये सप्लीमेंट्री रूल 194 में है। टीए क्लेम्स इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट्स एंड कन्वेयंस शैल बी सबमिटेड विद इन 60 डेज सक्सीडिंग द डेट ऑन व्हिच दीज आर एक्चुअली डिलीवर्ड टू द गवर्नमेंट सर्वेंट एट द न्यू स्टेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपका ट्रांसफर होता है, जो आपका पर्सनल इफेक्ट्स है और कन्वेयंस है, जब आपका न्यू हेडक्वार्टर में पहुंच गया, तो जब डिलीवरी हो गया तो उसका 60 डेज के अंदर आपको क्लेम करना है। क्लियर? 60 डेज के अंदर आपको क्लेम करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टीए एंड डीए फॉर लोकल जर्नी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। मीनिंग ऑफ लोकल जर्नी, सप्लीमेंट्री रूल 71। जो लोकल जर्नी होता है वो जर्नी बियॉन्ड 8 किलोमीटर्स, ए जर्नी बियॉन्ड ए रेडियस ऑफ 8 किलोमीटर फ्रॉम द ड्यूटी पॉइंट एट हेडक्वार्टर्स। तो आपका ड्यूटी पॉइंट से जो आप जर्नी कर रहे हो तो बियॉन्ड 8 किलोमीटर्स होना चाहिए। विद इन 8 किलोमीटर होगा तो वो लोकल जर्नी के लिए आपको टीएडी आप क्लेम नहीं कर सकते। बियॉन्ड 8 किलोमीटर्स फ्रॉम द ड्यूटी पॉइंट आप क्लेम कर सकते हो। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो जर्नी, तो लोकल जर्नी क्या है आप देख लीजिए। ए जर्नी बियॉन्ड ए रेडियस ऑफ 8 किलोमीटर फ्रॉम द ड्यूटी पॉइंट at headquarters but within the municipal limits of the town or city in which the duty point is located and includes journeys performed within the limits of suburban or other municipalities, notified areas or cantonments contiguous to the municipality or corporation of the town or city in which the duty point is located. तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि लोकल जर्नी जो होता है वो विद इन म्यूनसिपल लिमिट्स के अंदर होता है, नोटिफाइड एरियाज और कैंटनमेंट्स कंटिग्यूअस टू द म्यूनसिपैलिटी और कॉर्पोरेशन ऑफ द टाउन और सिटी। मगर आपका जर्नी बियॉन्ड 8 किलोमीटर्स होगा तो लोकल जर्नी के लिए हम क्लेम कर सकते हैं, नहीं तो हम विद इन 8 किलोमीटर्स ड्यूटी पॉइंट से, हमारा जो जर्नी होगा ड्यूटी पॉइंट से विद इन 8 किलोमीटर होगा तो उसके लिए हम क्लेम नहीं कर सकते। तो लोकल जर्नी किसको कहा जाएगा ना, बियॉन्ड 8 किलोमीटर्स फ्रॉम द ड्यूटी पॉइंट, बट इट मस्ट बी सिचुएटेड विद इन द म्यूनसिपल लिमिट्स, विद इन द कॉर्पोरेशन ऑफ द टाउन, विद इन द सिटी in which the duty point is located. जर्नी ऑन ड्यूटी इन द अर्बन एग्लोमरेशन इन विच द प्लेस ऑफ ड्यूटी इज सिचुएटेड, जो अर्बन एग्लोमरेशन के अंदर होना चाहिए हमारा ड्यूटी पॉइंट। जर्नीज टू द प्लेसेस विच आर लोकेटेड इन द एरिया ऑफ ए पंचायत और जिला परिषद and which are contiguous to and lying on the outskirts of the municipality or corporation of the town or city in which the duty point is located. आप पंचायत के अंदर और एक जिला परिषद के अंदर आपका ड्यूटी पॉइंट है, ओके, तो उसी के अंदर आपका जर्नी हो रहा है और वो बियॉन्ड 8 किलोमीटर्स हो रहा है, तो उसको हम लोकल जर्नी मानेंगे। एंटाइटलमेंट क्या है लोकल जर्नी में? SR 71 बहुत इंपॉर्टेंट है, सप्लीमेंट्री रूल 71 में है। एम्प्लॉय के पास दो ऑप्शन है,
employee has two options. Either the conveyance higher charges under delegation of financial power rules, ये एक है, conveyance higher charges हम क्लेम कर सकते हैं, और TADA एज ऑन टूर में जो TADA हम डिस्कस कर चुके हैं वो ले सकते हैं। दोनों में एक हम प्रीफर करेंगे। तो फर्स्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ TADA एंटाइटलमेंट्स फॉर लोकल जर्नी, तो दोनों को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट TADA के ऊपर जा रहा हूँ, TADA एंटाइटलमेंट फॉर लोकल जर्नीज। फर्स्ट वन, टेम्पोररी ड्यूटी पॉइंट शुड बी बियॉन्ड 8 किलोमीटर्स फ्रॉम नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर द जर्नी इज परफॉर्म फ्रॉम रेसिडेंस और फ्रॉम द नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी। तो उसको मत लो, वो चाहे वो जो जर्नी है फ्रॉम रेसिडेंस से है और फ्रॉम नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी, दोनों तो सिचुएटेड है विद इन द सिटी, विद इन द म्यूनसिपल लिमिट्स, विद इन द पंचायत, विद इन द जिला परिषद, तो उसको लोकल जर्नी हम मानेंगे। मगर जो जर्नी होगा बियॉन्ड 8 किलोमीटर्स होगा। क्लियर? तो SR 71 में है, तो आपका लोकल जर्नी होगा, आपको यही लेना है विद इन टाउन, विद इन म्यूनसिपल लिमिट, विद इन कैंटोनमेंट एरिया, ओके, विद इन म्यूनसिपल लिमिट, विद इन पंचायत, विद इन जिला परिषद, इसमें जर्नी हो रहा है उसको लोकल जर्नी बोलते हैं। मगर बियॉन्ड 8 किलोमीटर जर्नी कर रहे हो उस एरिया में, तब उसको लोकल जर्नी माना जाएगा और उसके लिए आपको TADA आप क्लेम करोगे। फॉर लोकल जर्नीज ए गवर्नमेंट सर्वेंट विल ड्रॉ माइलेज अलाउंस एंड एन एडिशन टू ड्रॉ 50% ऑफ डेली अलाउंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लोकल जर्नी के लिए जब हम लोकल एरिया में जर्नी करते हैं, वो बियॉन्ड 8 किलोमीटर्स हो जाता है, तब हम जो DA क्लेम करेंगे वो 50% हम क्लेम करेंगे लोकल जर्नी के लिए, 100% नहीं मिलेगा। और जो माइलेज अलाउंस है, एंड इन एडिशन टू ड्रॉप 50% ऑफ डेली अलाउंस कैलकुलेटेड एट द फॉलोइंग रेट्स, जो टाइम के हिसाब से होता है। सपोज हम हेडक्वार्टर से 6 घंटा से कम एब्सेंस हुआ, तो हमको बेसिकली फुल केस में 30% ऑफ DA मिलता है। 6 घंटा से कम हम एब्सेंस हमारा हुआ हेडक्वार्टर से जर्नी के लिए, तब हमको 30% ऑफ DA मिलता है। मगर हम लोकल जर्नी के लिए हमको 50% ऑफ DA मिलेगा, तो ये 50% ऑफ 30% ऑफ DA हो जाएगा। सिमिलरली हमारा एब्सेंस 6 to 12 आवर्स के अंदर है, तो हमको 70% DA मिलता है फुल केस में। मगर लोकल जर्नी में जो 70% ऑफ DA जितना होगा उसका हाफ कर दो, क्योंकि जो DA मिलेगा हमको 50% मिलेगा लोकल जर्नी में। यदि 12 आवर्स से ज़्यादा हम एब्सेंस है हेडक्वार्टर से, तब हमको फुल DA मिलता है। तो इस केस में लोकल जर्नी में 50% ऑफ फुल DA। क्लियर? तो प्रीवियस केस में जो भी है उसका 50% कर दो। इट प्रोवाइडेड विथ कन्वेयंस फ्री ऑफ चार्ज, DA ओनली विल बी एडमिसेबल। यदि हमको जो कन्वेयंस मिलता है फ्री ऑफ चार्ज, सपोज हमको कोई हम ऑर्गेनाइजेशन की इंस्टीट्यूशंस का व्हीकल यूज किया, तो इसके लिए हमको कोई माइलेज अलाउंस हम क्लेम नहीं करेंगे, ओनली हमको DA मिलेगा। ये SR 71 में है, सप्लीमेंट्री रूल 71 में क्लियरली मेंशन है। लोकल जर्नी शुड नॉर्मली बी परफॉर्म्ड इन द सेम वे एज जर्नी टू ड्यूटी पॉइंट बाय बस, लोकल ट्रेन्स और ओन कन्वेयंस। Where travel by special means like taxi, scooter, etc. is considered necessary, but prior permission is required. यदि आप टैक्सी में जाना चाहते हो, if you want to cover the journey by taxi, scooter, etc., but prior permission of the superior authority should be taken. हमको प्रायर परमिशन लेना चाहिए यदि हम टैक्सी स्कूटर में जाएंगे। और अदर केस में जैसे लोकल ट्रेन्स, बस है, उसमें हम एज यूजुअल मैनर हम जर्नी कर सकते हैं। If more than one official is deputed for duty at the same point, they should, as far as possible, travel together by sharing the higher charges of the taxi or scooter or other conveyance. यदि एक से ज़्यादा ऑफिशियल जा रहे हैं सेम ड्यूटी पॉइंट को, तब चाहे वो टैक्सी में जाए चाहे वो स्कूटर में जाए, तो उसमें जो होगा वो जो हायर चार्जेस होगा वो दोनों के बीच में शेयर हो जाएगा। ओके, जो भी हायर चार्जेस मिलेगा, जब हम टीए क्लेम करेंगे, जो भी हायर चार्जेस मिलेगा वो शेयर हो जाएगा। सपोज 2 लोग जा रहे हैं सेम ड्यूटी पॉइंट को, चाहे टैक्सी में, चाहे ऑटो में, चाहे स्कूटर में, तो जितना पैसा ट्रैवल जर्नी में जितना पैसा खर्च होगा उसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि 2 लोग जा रहे हैं, तो वो शेयर हो जाएगा दोनों के बीच में। फॉर जर्नीज टू टेम्पोररी ड्यूटी पॉइंट विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर्स फ्रॉम द रेसिडेंस if performed by the public conveyances such as bus, local trains, trams and ferries, fares paid will be reimbursed. यदि मैं बार बार बताया, हमारा ड्यूटी पॉइंट से हम जर्नी कर रहे हैं विद इन 8 किलोमीटर्स, और जो जर्नी कर रहे हैं किसमें,
बस, लोकल ट्रेन, ट्राम्स, फेरीज, उसमें ओनली हमको फेयर्स मिलेगा, मगर उसमें हम डीए क्लेम नहीं कर सकते। मैं बार बार बताया, जो लोकल जर्नी होगा बियॉन्ड 8 किलोमीटर्स हम डीए क्लेम कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारा जो हम जर्नी ड्यूटी पॉइंट से हम जर्नी करेंगे विद इन 8 किलोमीटर, उसमें हम जो फेयर दे रहे हैं लोकल ट्रेन, बस, ट्राम्स, वो उसको हम रीइंबर्स कर सकते हैं। मगर विद इन 8 किलोमीटर्स हमको डीए नहीं मिलेगा, जो दिल्ली अलाउंस है वो नहीं मिलेगा। इन केस ऑफ ट्रैवल बाय व्हाइट लाइन बसेस प्लाई इन न्यू दिल्ली, रीइंबर्समेंट विल बी मेड ऑन प्रोडक्शन ऑफ टिकट्स। इफ सच जर्नीज आर परफॉर्म बाय टैक्सी, ऑटो रिक्शा, ओन कार, स्कूटर, नो माइलेज अलाउंस इज एडमिसिबल। ओके, वाइट बसेस जो चल रहा है दिल्ली में, उसमें हम टिकट को प्रोड्यूस करके रीइंबर्स कर सकते हैं। यदि हमारा जर्नी परफॉर्म बाय टैक्सी, ऑटो रिक्शा, ओन कार, स्कूटर में होता है तो वो माइलेज अलाउंस हमको नहीं मिलेगा। द बस और रेल फेयर और माइलेज अलाउंस ऑफ लोकल जर्नी शुड बी बेस्ड ऑन द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल्ड और द डिस्टेंस बिटवीन द नॉर्मल ड्यूटी पॉइंट एंड टेम्पररी ड्यूटी पॉइंट व्हिच एवर इज लेस। इट सप्लीमेंट्री रूल 46 में है। तो आपको यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोकल जर्नी है वो बियॉन्ड 8 किलोमीटर्स होना चाहिए और विद इन पंचायत, विद इन जिला परिषद, विद इन टाउन, विद इन म्यूनिसिपल लिमिट होना चाहिए। जब हमारा जर्नी बियॉन्ड 8 किलोमीटर्स होगा तब हमको डेली अलाउंस मिलेगा, मगर 50% मिलेगा। जो डेली अलाउंस मिलेगा वो 50% मिलेगा, फुल नहीं मिलेगा। और विद इन 8 किलोमीटर्स आप जर्नी कर रहे हो, जैसे बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ओके, जैसे बस की लोकल ट्रेन, जो फेयर है वो रिइंबर्स होगा, मगर वहां पर विद इन 8 किलोमीटर्स डीए आपको नहीं मिलेगा। 108 डेज लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है। एन ऑफिशियल रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ड्यूटी एट ए टेम्पररी ड्यूटी पॉइंट विल बी पेड डीए फॉर द फर्स्ट 180 डेज ओनली। सपोज आप कोई टूर में जा रहे हो टेम्पररी पीरियड के लिए, कि ट्रेनिंग में जा रहे हो टेम्पररी पीरियड के लिए, तो फर्स्ट 180 डेज के लिए आपको डीए मिलेगा। बियॉन्ड 180 डेज आपको डीए नहीं मिलेगा। माइलेज अलाउंस मिलेगा, मगर आप बियॉन्ड 180 डेज आपको डीए नहीं मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया है, तो आपको याद रखना है। सपोज इफ यू गो फॉर टूर और फॉर ट्रेनिंग, सो फॉर फर्स्ट 180 डेज द एम्प्लॉई can receive DA, but beyond 180 days there is no DA, but as usual manner mileage allowance can be reimbursed beyond 180 days. So beyond 180 days no DA will be admissible, but mileage allowance will be admissible. It is SR 73, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, सप्लीमेंट्री रूल 73। तो जो टेम्पररी ड्यूटी पॉइंट के लिए, जैसे हम टूर ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, तो फर्स्ट 180 डेज के लिए हमको डीए मिलेगा, बियॉन्ड 180 डेज हमको डीए नहीं मिलेगा, डेली अलाउंस नहीं मिलेगा, मगर माइलेज अलाउंस एज यूजुअल बियॉन्ड 180 डेज मिलेगा। नेक्स्ट जो मैं बोला था, दो ऑप्शन था, एक टीएडीए ऑन टूर और एक कन्वेयंस हायर चार्जेस, दोनों में से हमको एक लेना था। तो सेकेंड वन है कन्वेयंस हायर चार्जेस रिलेटेड टू द लोकल जर्नी। तो लोकल जर्नी में हमको दो ऑप्शन मिलता है, चाहे आप टीएडीए ऑन टूर के टाइम में जो टीएडीए मिलता है उसको आप लो, और कन्वेयंस हायर चार्जेस लो, जो भी एक आपको क्लेम करना पड़ेगा। तो टीएडीए ऑन टूर में डिस्कस कर चुका हूं, अभी कन्वेयंस हायर चार्जेस के ऊपर डिस्कस करेंगे। एडमिसिबल फॉर जर्नी ऑन ड्यूटी विद इन म्युनिसिपल लिमिट्स एंड व्हेन कॉल्ड टू अटेंड ऑफिस ऑन हॉलीडेज। दिस चार्जेस नॉट एडमिसिबल फॉर जर्नी टू ऑफिस फ्रॉम रेसिडेंस एंड बैक व्हेन समवन टू ऑफिस इन वर्किंग डेज आउटसाइड ऑर्डिनरी आवर्स ऑफ ड्यूटी और व्हेन रिटेन्ड बियॉन्ड ऑफिस आवर्स। आपको यहाँ पर याद करना है, ये जो कन्वेयंस चार्जेस है, हायर चार्जेस है, ये जो मिलेगा ओनली हॉलीडेज में मिलेगा। जब हॉलीडेज में हम ऑफिस जा रहे हैं काम करने के लिए, वहाँ पर मिलेगा, मगर वर्किंग डेज में यदि आउटसाइड वर्किंग आवर्स हम जा रहे हैं, आउटसाइड ऑर्डिनरी आवर्स ऑफ ड्यूटी और रिटेन्ड बियॉन्ड ऑफिस आवर्स, इस केस में हमको ये कन्वेयंस चार्जेस हमको नहीं मिलेगा। तो इसलिए क्लियरली मेंशन है, व्हेन कॉल्ड टू अटेंड ऑफिस ऑन हॉलीडेज। In case of gazetted officer, the controlling officer should certify that staff car was not available for the journey. ठीक है, स्टाफ कार यूज नहीं किया, सपोज गेजेटेड ऑफिसर को स्टाफ कार यूज नहीं किया, तब वो कन्वेयंस चार्जेस उनको मिलेगा। द टोटल कन्वेयंस चार्जेस फॉर ए पर्सन इन ए मंथ शुड नॉट एक्सीड ₹150। इस केस में जो कन्वेयंस चार्जेस होगा मंथली, वो 150 से ज़्यादा नहीं होगा। द मोड ऑफ कन्वेयंस फॉर लोकल जर्नी शुड नॉर्मली बी सेम आज यूज्ड फॉर जर्नी टू ड्यूटी पॉइंट, दैट इज टू से बस और लोकल ट्रेन और ओन कन्वेयंस।
For special mode of conveyance for local journey such as taxi, auto rickshaw and claiming charges for its hire, prior permission of superior authority should be obtained and the claim should contain a certificate from the superior authority on the exigency of the work. For use of own conveyance, the reimbursement will be as per road mileage allowance for TA on tour. यदि आप ओन कन्वेयंस में जा रहे हो, जो रोड माइलेज अलाउंस है उसके हिसाब से रिइंबर्समेंट होगा. Conveyance hire charges are not admissible when official is granted compensatory leave or special remuneration for duty purpose. यदि स्पेशल रेमुनरेशन ले रहे हो कि जो कॉम्पेंसेटरी लीव में हो तो उस केस में आपको कन्वेंस हायर चार्जेस आपको नहीं मिलेगा. ओके, जिस दिन आप कॉम्पेंसेटरी लीव में हो और स्पेशल रेमुनरेशन ले रहे हो उस दिन के लिए आपको कन्वेंस हायर चार्जेस नहीं मिलेगा. Conveyance hire charges can be given when recalled from residence to perform overtime, OT work, overtime work. Group A officers are entitled for taxi or auto rickshaw or bus fare and others for auto rickshaw or bus fare. ये सब याद रखना है. Competent authority to sanction conveyance charges are ministries or departments and head of the departments in the case of gazetted officers. ये जो conveyance charges जो sanction होगा बेसिकली gazetted officer के लिए ministries और departments और head of the departments और नॉन गेजेटेड एम्प्लॉइज के लिए हेड ऑफ द ऑफिस जो कन्वेयंस चार्जेस को अलाउ करेगा, सैंक्शन करेगा. टीएडीए ऑन टेम्पोररी ट्रांसफर अभी मैं डिस्कस किया था. इन ऑल केसेस ऑफ ट्रांसफर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर शॉर्ट पीरियड्स नॉट एक्सीडिंग, टेम्पोररी ट्रांसफर मीन्स नॉट एक्सीडिंग 180 डेज, विद इन 180 डेज. जब हम हेडक्वार्टर से हम कोई ड्यूटी पॉइंट को जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, और कोई ड्यूटी के लिए, मगर इट इज़ विद इन 180 डेज, तब इसको टेम्पोररी ट्रांसफर माना जाएगा. द जर्नी फ्रॉम हेडक्वार्टर्स टू द स्टेशन ऑफ डेपुटेशन एंड द बैक विल बी ट्रीटेड एज ऑन टूर एंड डीए ग्रांटेड फॉर फास्ट 180 डेज ओनली. तो आपको यहाँ पर याद रखना है, जस्ट यू रिमेंबर, टेम्पोररी ट्रांसफर मीन्स द एम्प्लॉई go to the tour station or go for training within 180 days. It is temporary transfer. Clear? And in this case, DA only, Delhi allowance is only available for first 180 days, not beyond of that. Beyond of that mileage allowance मिलेगा, मगर DA नहीं मिलेगा. DA जो मिलेगा फर्स्ट 180 डेज के लिए मिलेगा. ये सर 114 सप्लीमेंट्री रूल 114 में मेंशन है. जब हम जो टेम्पररी ट्रांसफर के लिए जाएंगे हमको कोई ज्वाइनिंग टाइम इज नॉट एडमिसिबल, ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलेगा. ओनली एक्चुअल ट्रांजिट टाइम आज पर टूर, जब हम टूर में जा रहे हैं जो ट्रांजिट टाइम है वही मिलेगा. जो हमारा जर्नी में जितना दिन जा रहा है तो उसमें जर्नी टू एंड फ्रो जाने का आने का ओनली ट्रांजिट टाइम मिलेगा, यहाँ पर ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलेगा. और इस टाइप ऑफ टेम्पररी ट्रांसफर में हमको कोई एडवांस नहीं मिलेगा. नो एडवांस ऑफ पे इज एडमिसिबल. If a transfer originally made for a period more than 180 days is reduced to 180, यदि आपको याद रखना है, यदि आपका ट्रांसफर बियॉन्ड 180 डेज हो गया तो आपको जो ट्रांसफर बेनिफिट मिलता है उसके हिसाब से आप बेनिफिट ले सकते हो. विद इन 180 डेज वो टेम्पररी ट्रांसफर हो गया तो उसके लिए फर्स्ट 180 डेज आपको डीए मिलेगा. 180 डेज के बाद आप माइलेज अलाउंस ले सकते हो मगर डीए नहीं ले सकते. मगर बियॉन्ड 180 डेज जो भी ट्रांसफर में, ट्रांसफर केस में, जब हमारा हेडक्वार्टर, न्यू हेडक्वार्टर को आप जा रहे हो, ट्रांसफर आपका हो गया तो उस केस में जो भी आप क्लेम कर रहे हो उसमें क्लेम कर सकते हो, मगर वो आप बियॉन्ड 180 डेज, इसको याद रखना है. यदि इफ ए ट्रांसफर ओरिजिनली, यदि ओरिजिनली आपका ट्रांसफर जो हुआ था बियॉन्ड 180 डेज हुआ था तो अब जैसे ट्रांसफर बेनिफिट मिलता है वहाँ पर मैं अभी बताया, बियॉन्ड 180 डेज मीन्स हम जैसे ट्रांसफर टाइम में जो हम क्लेम करते हैं वही हम क्लेम करेंगे, उसी का बेनिफिट हमको मिलेगा. मगर इमीडिएटली वो रिड्यूस हो गया, इज रिड्यूस टू 180 डेज और लेस लेटर. द क्लेम, टीए क्लेम ओरिजिनली अलाउड शुड नॉट बी चेंज्ड टू द डिसएडवांटेज ऑफ द ऑफिशियल. सपोज हम टीए क्लेम कर चुके हैं, कोई एडवांस ले चुके हैं तो उसको चेंज नहीं किया जाएगा. ओके, क्योंकि 180 डेज के बाद सपोज हमारा जो टूर है वो बियॉन्ड 180 डेज है तो वो ट्रांसफर बेनिफिट में जो मिलता है वही मिलेगा. तो उस केस में हमको ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा, उस केस में हमको एडवांस मिलेगा. तो जब इमीडिएटली क्या हुआ,
जो हमारा टूर था बियॉन्ड 180 डेज था, उसको इमीडिएटली रिड्यूस कर दिया गया, विद इन 180 डेज हो गया। तो उसमें जो हमको बेनिफिट मिला था, ट्रांसफ़र का बेनिफिट, हम ज्वाइनिंग टाइम हमको मिला था कि हमको एडवांस हम ले चुके थे, तो वो सब चेंज नहीं होगा इस केस में। इफ ए टेम्पररी ट्रांसफर ओरिजिनली मेड फॉर ए पीरियड ऑफ 180 डेज और लेस इज लेटर एक्सटेंडेड बियॉन्ड 180 डेज। सपोज हमारा एक टेम्पररी ट्रांसफर था, वो विद इन 180 डेज था, इमीडिएटली वो क्या हुआ ना, इसको एक्सटेंड कर दिया, बियॉन्ड 180 डेज हो गया। तो दोनों में अंतर है, विद इन 180 डेज, बियॉन्ड 180 डेज। विद इन 180 डेज हम जो डीए क्लेम करेंगे, जो डेली अलाउंस हम क्लेम करेंगे, फर्स्ट 180 डेज के लिए करेंगे। मगर बियॉन्ड जो 180 डेज हो जाएगा, हम जो भी बेनिफिट हमको मिलेगा ट्रांसफर बेनिफिट के हिसाब से मिलेगा। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, विद इन 180 डेज बेसिकली टेम्पररी ट्रांसफर केस में हमको ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलेगा, मगर बियॉन्ड 180 डेज आपका टूर टाइम हो जाता है, तब तो आपको ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। विद इन 180 डेज जो टेम्पररी ट्रांसफर में हमको एडवांस नहीं मिलेगा, मगर बियॉन्ड 180 डेज हमको एडवांस मिलेगा। ठीक है, यदि आपको आपका जो टूर था विद इन 180 डेज था, मगर इसको एक्सटेंड कर दिया गया बियॉन्ड 180 डेज, ये SR 114 में है, तब क्या होगा, नेसेसरी ट्रांसफर ऑर्डर शुड बी इश्यूड। डीए विल बी एडमिसिबल टिल द डेट ऑफ रिवाइज्ड ऑर्डर्स। जब तक रिवाइज्ड ऑर्डर आपको नहीं मिला है, तब तक आपको डीए मिलता रहेगा। टीए ड्रॉन विल बी एडजस्टेड इन ट्रांसफर टीए क्लेम, क्योंकि बियॉन्ड 180 डेज हो गया, मीन्स हम ट्रांसफर जैसे ट्रांसफर टीए जब क्लेम करते हैं उसी तरीके से हम क्लेम करेंगे, और उसमें जो भी है ट्रैवल अलाउंस जो भी है वो एडजस्ट होगा। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। टीएडीए व्हाइल ऑन डेपुटेशन फॉर ट्रेनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेपुटेशन फॉर ट्रेनिंग क्या टीएडीए होगा, एन एम्प्लॉई deputed to undergo a course of training in India, refresher, in service or pre-promotional, is entitled to draw TA and DA as on tour as follows। ये दिया है, बोर्डिंग लॉजिंग फैसिलिटीज नहीं मिला है, तो यहाँ पर याद रखना है, कोई रिफ्रेशर कोर्स, कोई इन सर्विस, कोई प्री प्रमोशनल ट्रेनिंग के लिए हम न्यू हेडक्वार्टर को जा रहे हैं, न्यू हेडक्वार्टर मीन्स ट्रेनिंग स्टेशन को जा रहे हैं, तो हम कैसे टीएडीए हमारा रीइंबर्स होगा, हम कैसे टीएडीए क्लेम करेंगे। फर्स्ट केस में हमको बोर्डिंग लॉजिंग नहीं मिलेगा, तो फर्स्ट 180 डेज फुल डीए मिलेगा, फर्स्ट 180 डेज। तो बियॉन्ड 180 डेज हमको डीए नहीं मिलेगा, मगर माइलेज अलाउंस मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स वेयर बोर्डिंग एंड लॉजिंग फैसिलिटीज एग्जिस्ट। जो हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पर बोर्डिंग लॉजिंग फैसिलिटीज है, इंक्लूडिंग मेस रन ऑन कोऑपरेटिव बेसिस एट द ट्रेनिंग सेंटर। कोऑपरेटिव बेसिस में हमको बोर्डिंग लॉजिंग फैसिलिटी मिल रहा है ट्रेनिंग सेंटर में, तो क्या होगा, फर्स्ट 30 डेज हम फुल डीए क्लेम करेंगे, फर्स्ट 30 डेज हम फुल डीए क्लेम करेंगे, नेक्स्ट 150 डेज हम हाफ डीए क्लेम करेंगे, और बियॉन्ड 108 डेज नील। यदि बोर्डिंग लॉजिंग फैसिलिटीज मिल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कोऑपरेटिव बेसिस, फर्स्ट 30 डेज आपको फुल डीए मिलेगा, नेक्स्ट 150 डेज हाफ डीए मिलेगा, और बियॉन्ड 108 डेज नहीं मिलेगा, डीए नहीं मिलेगा। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। इन केस ऑफ ट्रेनिंग एक्सीडिंग 180 डेज द एम्प्लॉय कैन ऑप्ट फॉर। यदि आपका ट्रेनिंग बियॉन्ड 180 डेज हो गया, तो आप जो टीए क्लेम करेंगे वो ट्रांसफर, जब एक एम्प्लॉय का ट्रांसफर होता है, वो जैसे टीए क्लेम करता है उसी केस में उसी तरीके से वो क्लेम करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बियॉन्ड 180 डेज। विद इन 180 डेज में बार बार बताया, विद इन 180 डेज वो टेम्पररी ट्रांसफर है, और विद इन 180 डेज हमको डीए मिलेगा, और एज यूजुअल मैनर माइलेज अलाउंस मिलेगा, मगर बियॉन्ड 180 डेज हमको डीए नहीं मिलेगा, ओनली माइलेज अलाउंस मिलेगा। मगर जब हमारा ट्रेनिंग एक्सीडिंग 180 डेज हो रहा है, हम जो क्लेम करेंगे ट्रांसफर के हिसाब से हम क्लेम करेंगे, क्योंकि टेम्पररी ट्रांसफर में विद इन 180 डेज में हमको ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलेगा और हमको कोई एडवांस नहीं मिलेगा। मगर बियॉन्ड 180 डेज जब हमारा ट्रेनिंग पीरियड हो जाता है, तो उस केस में जो ट्रांसफर बेनिफिट मिलता है, जब हमारा ट्रांसफर होता है न्यू हेडक्वार्टर को, जैसा बेनिफिट मिलता है उसमें वही बेनिफिट, ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा, हमको एडवांस मिलेगा, जो है ट्रांसफर बेनिफिट उसमें मिलेगा। क्लियर। टीए एंड डीए एज ऑन ट्रांसफर याद रखना है, टीए एंड डीए एज ऑन टूर फॉर 180 डेज ओनली एंड नथिंग देयर आफ्टर। यदि टूर में आप जा रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि टूर में जा रहे हो
तो 180 डेज के लिए आपको डीए मिलेगा, बियॉन्ड ऑफ दैट आपको डीए नहीं मिलेगा, ओनली माइलेज अलाउंस मिलेगा। इफ थियोरिटिकल ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आर गिवन इन 2 different stations, DA in the second station will commence afresh irrespective of whether DA was drawn for 180 days or less in the first station। यदि आपका थियोरिटिकल ट्रेनिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग डिफरेंट स्टेशंस में हो रहा है, तो आप थियोरिटिकल ट्रेनिंग के लिए 180 डेज के लिए डीए ले चुके हो, तब जब आपका न्यू ट्रेनिंग होगा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, तब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए भी आपको फर्स्ट 180 डेज के लिए आपको डीए मिलेगा। यदि बोथ थियोरिटिकल एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आर एट द सेम स्टेशन, यदि सेम स्टेशन में दोनों प्रकार का ट्रेनिंग हुआ, इन बोथ थियोरिटिकल एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंडक्टेड इन द सेम स्टेशन, देन डीए विल बी एडमिसिबल फॉर द फर्स्ट 180 डेज। तो यहाँ पर याद रखना है, यदि थियोरिटिकल एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आर इन डिफरेंट स्टेशंस, तो अलग अलग फर्स्ट 180 डेज के लिए आपको डीए मिलेगा। थियोरिटिकल ट्रेनिंग के लिए फर्स्ट 180 डेज में डीए मिलेगा, और फेस के आकार में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए भी 180 डेज के लिए डीए मिलेगा सेपरेट के हिसाब से। बट इफ बोथ थियोरिटिकल एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंडक्टेड इन द सेम स्टेशन, देन डीए विल बी एडमिसिबल फॉर द फर्स्ट 180 डेज ओनली। ये सप्लीमेंटरी रूल 164 में है। इफ एन एम्प्लॉय गोज ऑन टूर टू डिफरेंट स्टेशंस इन बिटवीन द ट्रेनिंग, यदि एक एम्प्लॉय ट्रेनिंग के लिए गया है और ट्रेनिंग स्टेशन से वो डिफरेंट टूर स्टेशन को गया, ट्रेनिंग स्टेशन से और कहाँ पर ट्रेनिंग सपोज टूर्स के लिए गया, द एंटायर पीरियड इंक्लूडिंग द टूर्स विल बी कंसिडर्ड एज ए सिंगल स्पेल फॉर काउंटिंग 180 डेज फॉर एडमिसिबिलिटी ऑफ डीए एज एन टूर। एक एम्प्लॉय टूर में गया, टूर स्टेशन से वो फिर और कुछ जगह को टूर के लिए गया, मगर यहां पर जो डीए जो मिलेगा वो फर्स्ट 180 डेज के लिए मिलेगा। टूर प्लस जो उसके साथ जो डिफरेंट एरियाज को टूर किया गया वो एक स्पेल में ही रहेगा, सिंगल स्पेल फॉर काउंटिंग 180 डेज फॉर एडमिसिबिलिटी ऑफ डीए एज एन टूर। नो टीएडीए बहुत इंपॉर्टेंट है। नो टीएडीए इज एडमिसिबल फॉर ट्रेनिंग एट द हेडक्वार्टर। यदि ट्रेनिंग आपको आपका हेडक्वार्टर में मिलता है, जहां पर आपका ड्यूटी पॉइंट है, आपका हेडक्वार्टर वही है, उसके उसी हेडक्वार्टर में, उसी विद इन म्यूनसिपल लिमिट, विद इन कैंटनमेंट, विद इन पंचायत, विद इन जिला परिषद, विद इन म्यूनसिपल लिमिट, उसमें आपका हेडक्वार्टर है, उसी में आपको ट्रेनिंग मिल रहा है, तो उसमें आपको टीएडीए नहीं मिलेगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन नॉर्मल ड्यूटी पॉइंट एंड द ट्रेनिंग सेंटर। मैं बार बार बताया, उसी जो हेडक्वार्टर जो स्टेशन है आपका, उसी में ट्रेनिंग कंडक्ट किया जाता है, तब आपको टीएडीए नहीं मिलेगा। Officials deputed for training to the institutions which are located within the urban agglomeration of government servants headquarters are not entitled to any TADA irrespective of the distance। यहाँ पर और urban agglomeration में सपोज और विद इन और अर्बन एग्लोमरेशन आपको ट्रेनिंग मिल रहा है, तो आप उसको आपका हेडक्वार्टर माना जाएगा, क्योंकि आपका ड्यूटी पॉइंट वहाँ पर है। तो उसमें कोई ट्रेनिंग आप ले रहे हो तो कोई डिस्टेंस वहाँ पर काउंट नहीं होगा। वहाँ पर हाँ अलग हो सकता है, आपका ड्यूटी पॉइंट और ट्रेनिंग स्टेशन अलग हो सकता है, मगर विद इन द अर्बन एग्लोमरेशन तो उसमें आपको टीएडीए नहीं मिलेगा। An employee drawing DA during training will be entitled to draw HRA house rent allowance only at the rates admissible at his headquarters from where he has been deputed for training। इसको याद रखना है, आप कोई ट्रेनिंग के लिए गए हो तो आपको जो HRA मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, तो आपका हेडक्वार्टर स्टेशन के हिसाब से मिलेगा, ट्रेनिंग स्टेशन के हिसाब से नहीं मिलेगा। आपका हेडक्वार्टर में जो रेट है उसी रेट के हिसाब से मिलेगा, आपका ट्रेनिंग स्टेशन के हिसाब से नहीं मिलेगा। और यहाँ पर क्या है, टेम्पोररी ट्रांसफर में कितना, जो टेम्पोररी ट्रेनिंग के लिए फर्स्ट 180 डेज डीए मिलेगा, और बियॉन्ड ऑफ दैट आपको डीए नहीं मिलेगा, मगर बियॉन्ड ऑफ दैट आपको एचआरए मिलता रहेगा। एचआरए में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर यहाँ पर याद रखना है कि एचआरए जो मिलेगा आपका हेडक्वार्टर स्टेशन के हिसाब से मिलेगा, ट्रेनिंग स्टेशन का हिसाब से नहीं मिलेगा। तो रेट सपोज अलग हो सकता है, आपका हेडक्वार्टर और ट्रेनिंग स्टेशन में अलग हो सकता है। ठीक है, अभी जो है 24%, 18% एंड 9%, जैसे अभी जो रेट है 24-16-8, अभी जो रेट है 24-16-8। सपोज आपका हेडक्वार्टर स्टेशन में अभी एचआरए रेट है 16%, मगर जो ट्रेनिंग आप ले रहे हो वहाँ पर है 24%, मगर आपको आपका हेडक्वार्टर के हिसाब से एचआरए मिलेगा,
वही 16% मिलेगा। ट्रेनिंग स्टेशन के हिसाब से नहीं मिलेगा, क्योंकि ट्रेनिंग स्टेशन में 24% है HRA, नहीं मिलेगा। अभी जो है, जो रेट है 24, 16, 8, 24 मेट्रोपॉलिटन सिटी, ओके, एंड 16 सम सिटीज़, ठीक है। और मेरा HRA का वीडियो पड़ा है मेरा प्लेलिस्ट में, देख लीजिए। और 8% अदर नॉर्मल एरिया में, ओके। इट इज SR 116 में मेंशन है। इन केस ऑफ रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम वेयर बोर्डिंग एंड लॉजिंग एट द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आर कंपल्सरी एंड प्रोवाइडेड एट फिक्स्ड रेट्स। यदि वो रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहाँ पर फिक्स है बोर्डिंग लॉजिंग फैसिलिटीज, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स उसके अंदर है, और उसके अंदर भी क्वार्टर है, जो ट्रेनिंग के लिए जाएंगे उनको क्वार्टर फैसिलिटी मिलेगा, क्योंकि वो रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इस केस में क्या होगा ना, आउटसाइड पार्टिसिपेंट्स के लिए एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन बोर्डिंग एंड लॉजिंग, जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर होगा बोर्डिंग एंड लॉजिंग वो मिलेगा, प्लस 1/4 ऑफ द फुल डीए का 1/4 मिलेगा। मगर आउटसाइड पार्टिसिपेंट्स, जो लोकल पार्टिसिपेंट्स है, ओनली एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन बोर्डिंग एंड लॉजिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम में, रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या है, बेसिकली ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज देयर एंड ऑल्सो क्वार्टर फैसिलिटी इज देयर फॉर ट्रेनिंग पर्सनल्स, okay, for trainees also quarter facilities are available. In that case only outside participants जो actual expenditure on boarding and lodging मिलेगा और 1/4 of full DA मिलेगा, मगर local participants कोई DA नहीं मिलेगा, only actual expenditure on boarding and lodging। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। If the participants are permitted to stay outside the institution, जो outside रहेगा then वो eligible as usual manner, वो eligible DA के लिए वो eligible है। TA to probationers on training, जो प्रोबेशनर्स होते हैं, जो न्यूली ज्वाइंड होते हैं, उनका प्रोबेशन पीरियड 2 इयर्स होता है, इनिशियल पीरियड ऑफ 2 इयर्स। उनके लिए क्या है, इस सर सप्लीमेंट्री रूल 164 में नो टीए इज अलाउड फॉर ऑनवर्ड जर्नी टू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। जाने के लिए जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जब जाएंगे उनको कोई टीए नहीं मिलेगा। नो टीए इज अलाउड फॉर प्रोबेशनर्स हु आर टेकन टू आउट स्टेशन फॉर ट्रेनिंग एक्टिविटी। दे हैव टू पे बोर्डिंग और लॉजिंग और ट्रांसपोर्ट चार्जेस फ्रॉम देयर पॉकेट। उनको जो बोर्डिंग लॉजिंग जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस है उनका पॉकेट से वो खुद ही देंगे। नो डेली अलाउंस, उनको डेली अलाउंस भी नहीं मिलेगा। उनको कम क्या मिलेगा, ओनली वन साइड टीए। जब वो रिटर्न करेंगे ट्रेनिंग स्टेशन से उनका हेडक्वार्टर को, ओनली वन साइड टीए उनको मिलेगा। ओनली वन साइड टीए ओनली इज अलाउड ऑन कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग टू रिपोर्ट फॉर ड्यूटी। क्लियर? अदर केस में कोई नहीं होगा। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जा रहे हैं उनको कोई टीए नहीं है, आउट स्टेशन जा रहे हैं कोई ट्रेनिंग एक्टिविटी के लिए उनको टीए नहीं है, और जो भी ट्रेनिंग स्टेशन में बोर्डिंग लॉजिंग फैसिलिटी की ट्रांसपोर्ट चार्जेस होगा उनका पॉकेट से खुद ही देंगे, उनको कोई डेली अलाउंस नहीं मिलेगा। और ओनली जब रिटर्न करेंगे तब ओनली रिटर्न जाने के लिए उनको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा। वन साइड टीए ओनली इज अलाउड ऑन कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग टू रिपोर्ट फॉर ड्यूटी। तो इसलिए इसको ग्रीन मार्क में मेंशन किया। एनी रीइंबर्समेंट ऑलरेडी मेड मे बी रिकवर्ड। तो ये मेरा थर्ड टॉपिक है। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, और भी ट्रैवलिंग अलाउंस के ऊपर मैं वीडियो लाऊंगा क्योंकि मेरा थर्ड पार्ट है। सो यू गो टू माई प्ले लिस्ट, you go to my channel Asit Government Rule Guru and go to the playlist. Already 2 parts of traveling allowance you can find. It is the third part. Please subscribe my channel Asit Government Rule Guru so that in future, in subsequent time, you can get notification for my upcoming videos. So आज इतना ही है. Thank you.